Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to present trends and possibilities of information technology in United System of Medicine. Myself Mohammad Shiraz, Scientist Level 1 Reader, Department of Mualjat. In this we will see the basics of information technology, telemedicine, health informatics, what is possibilities and necessities, Unisoft, Mizaj Soft, e-Adviya and other pathies achievement in field of IT, future plan for Ayush. अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असल में होती क्या है। जब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो डेटा है उसको स्टोर किया जाए, उसको रिट्राई और ट्रांसमिट किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, तो इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम देखते हैं अब ये क्या है। It is also called machine intelligence. It is demonstrated by machines in contrast to the natural intelligence displayed by humans and other animals. में मशीन का इस्तेमाल होता है। आइए और बेहतर तौर से समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और नेचुरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक ही होता है या उसमें कुछ फ़र्क होता है। Exploring a universe of data to sharpen our view of the most distant galaxies. And studying black holes to help prove Einstein's theory of gravitational waves. I am a healer, giving doctors the power to turn mountains of data into life-saving breakthroughs. Identifying diseases like leukemia from a simple drop of blood, even in our own homes, and finding new ways to bring cures to market faster. I am a protector, keeping our oceans safe from invasive species, and helping our crops flourish while minimizing pesticides. I am a helper, assisting customers in stores and the disabled in their homes. I am a navigator, mapping our world 1 millimeter at a time, and making even the largest self-driving vehicles safer for the long haul. I am a creator, learning to paint from the masters and applying their styles to create original works of art. I am a teacher, analyzing 500,000 player moves every game to identify strengths and weaknesses. And a learner, discovering new strategies from complex games. I am even the composer of the music you're hearing. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. तो आपने देखा कि एआई क्या होता है। अब देखते हैं टेलीमेडिसिन क्या होता है। टेलीमेडिसिन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टेलीमेडिसिन असल में यह है जैसे टेलीफोन, दूर से बात करना। टेलीमेडिसिन दूर से इलाज मुआवजा करना। आज इसकी अहमियत तो और बढ़ गई है, ख़ास तौर से कोरोना के दौर में इसकी अहमियत और बढ़ गई है। इट इज़ ए यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड क्लिनिकल हेल्थ केयर फ्रॉम ए डिस्टेंस। जो लेटेस्ट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं रोबोटिक सर्जरी होती है, ये भी एक किस्म की टेलीमेडिसिन ही है, टेली सर्जरी हम इसको कह सकते हैं। ई नोज़ का इस्तेमाल होता है,
कि कहीं माइन है, जहरीली गैस है, वहाँ पे जाने की बजाय हम इसके ज़रिए से उस गैस का वहाँ पता लगा सकते हैं। जैसे ओवुलेटर है, ओवुलेटर के ज़रिए टाइम ऑफ ओवुलेशन पता चल जाता है। इसका यूनानी में बड़ा फ़ायदा है। ओवुलेशन का टाइम हो जाए तो बहुत सारी दवाएँ तो ओवुलेशन के फ़ौरन बाद दी जाती हैं। माजून सुपारी पाक, माजून फरासा वगैरह। ई टंग है, इसका इस्तेमाल करके टेस्ट किसी चीज़ का पता चल सकता है। कोई चीज़ पॉइजनस है, उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते। ई टंग के ज़रिए से हम उसका टेस्ट पता कर सकते हैं। अब ब्लड शुगर डिटरमाइनिंग चिप आ गई है, जिसके ज़रिए से हम आसानी के साथ जो है वो ब्लड शुगर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लेटेस्ट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हम देख It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. Great. Okay. Pull the green bit. Now place the pad on your father's chest. Good. I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. Were they a little surprised that a drone came hovering down out of the sky with a life jacket? I mean, they must have been confused. Well, I was able to communicate with him from the bank and explain to him what we were going to do. He clearly understood that, and the abilities of unmanned aerial vehicles, in particular this drone that I was using, are pretty incredible. I felt very comfortable in being able to get that line out to him and position it in such a location where he'd be able to disconnect it and then pull the life vest out to him, and that's in fact what he was able to do. So I bet After that, we just put the drone up in the I beg your pardon. after we put the drone up and used it as an aerial observation platform for the remainder of the incident. Unbelievable. I bet you're going to keep it in your truck forevermore. This is why everybody loves firemen, because you guys do stuff like this. It's great to see Chief Frank Roma of the Auburn, Maine Fire Department. Thanks. Fire. Since all the time, mankind has used it to enrich and improve our lives. But what happens when things go wrong? Each year, cities around the world. आप देख सकते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी किस तरीके से मुख्तलिफ़ शोबों में इस्तेमाल हो रही है। कहीं आग लगी है, उसको बुझाने के लिए, कहीं सैलाब आया हुआ है, लोगों को बचाने के लिए। कहीं पर आपने देखा वो जो मुख्तसर सी कहानी है कि एक लड़की थी, उसको उसके वालिद को कार्डियक प्रॉब्लम था और फ़ौरन किट मंगवाई गई ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो ये कि आज की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके ज़रिए से जो है वो फ़ायदे हासिल किए जा रहे हैं। ये एक बड़ी मुफीद चीज़ हो सकती है अगर इसको तिब्ब यूनानी में भी इसको जो है वो लागू किया जाए। अब देखिए ये बताया जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के जो मज़ीद इस्तेमालात हो सकते हैं। Releases the powder and extinguishes the fire. मुख्तलिफ़ किस्म के पिक्चर लेने के लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल होता है। आप आगे पीछे करके जो है वो रियलिटी को जान सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। Underneath the drone, secures it in
emergency where needed. The drone takes off, looks for its target, and releases the ball. The ball falls and suppresses the fire. This system could be rolled out worldwide to all emergency forces, giving them access 24/7 to a quick, precise method of suppressing rooftop fires. The aerial firefighting system from Smeagol. अब तो बहुत सारी चीज़ों की डिलीवरी देखिए ड्रोन के ज़रिए से हो रही है। कहीं रिमोट पे आपको माजीन और जवार इरशाद भिजवाने हों किसी रिमोट प्लेस के ऊपर, तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है। इस पर सोचना चाहिए। जब वेस्टर्न वर्ल्ड इस चीज़ को, चाइना इसको अप्लाई कर रहा है, चाइना यूज़ कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। इस चीज़ पर जो है वो हुकूमत वक्त को भी गौर करना चाहिए। It left from an uninhabited area and landed in an uninhabited area, and in this case, it even flew over the water, another uninhabited area. The issues of, say, flying over a crowded road, flying to someone's house when someone might be standing around, potentially losing a GPS signal, all of those still need to be dealt with. अब हम देखते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। एक होती है रियलिटी, एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। इस टेबल पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ ही लम्हों में यहाँ पे आपको कुछ नज़र आएगा। आप देखते रहिए। इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, एक्चुअली ये एनाटॉमिकल लैब है, एनाटॉमी की क्लास हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अभी यहाँ कुछ नहीं था, अब यहाँ पे आपको एक स्कल नज़र आ रहा है। देखिए एक एक बोन अलग हो गई, पैराइटल बोन अलग हो गई और दीगर बोन भी अलग हो गई। वो स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। जाहिर सी बात है, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेल्थ सिस्टम पे होता है, दैट इज़ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। क्या ये पॉसिबल है? कि हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है कि हम आईटी का यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल करें। EHR जो HMIS की शक्ल में चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, NMSTP, NPL, AI, लिप साइंस, ई-बुक्स, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ हम यूनानी बहुत काम कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म रिसर्च गेट का है, जहाँ पे यूनानी से वाबस्ता मुहक्किकीन अगर अपनी तहकीकात अपलोड करते रहे तो तिब्ब यूनानी की अहमियत व इफ़ादत आलमी तौर पर मुतआर्रिफ होगी। नेज़ बैनुल अक़वामी तौर पर साइंसदान और दीगर मुफक्किरीन का मबहस ने तबादला ख्याल का मौजू बन सकती है, और ये लाहे अमल तिब्ब यूनानी के लिए तक़वियत का बाइस है। यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम क्या होता है? मुत्तहिद तिब्बी लिसानी निज़ाम UMLS का इस्तेमाल करके तिब्ब यूनानी की इस्तिलाहात की मयारी दर्जाबंदी की जा सकती है। तिब्ब यूनानी की मयारी इस्तिलाहात मरकज़ी कौंसिल बराए तहक़ीक़ात तिब्ब यूनानी पहले ही शाये कर दी है, मगर वो अब भी इस्तिलाहात की मुतक़ाज़ी हैं। मसलन उसकी सॉफ्ट कॉपी जो बाब आयुष बराए कौमी मर्ज़ियाती मयारी इस्तिलाह NMSTP के मौक़ा शबकिया पर मौजूद है, अगर उसे ज़ूद याद मतन अलामती ज़बान से मुनक़्क़श किया जाए तो और भी बेहतर होगा। नेज़ एक मुतबादिल बउनवान तलाश के नाम से उसमें शामिल किया जाए। नेज़ देवनागरी के अलावा दीगर ज़बानों में तलाश करने की सहूलत शामिल की है, जैसा कि दीगर मासिर तिब्बों ने इस मामले में तरक्की की है। नेज़ इस्तिलाहात के अलावा मुआलजात भी उसमें शामिल किया जाए तो इस सोने पर सुहागे के मुतरादिफ होगा। ज़ाहिर बात है कि जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है वो नमस्ते पोर्टल पर मौजूद है।
तो उसमें मज़ीद इस किस्म की इस्तिलाहात की जाए तो बड़ी नफ़ा बख्श बात हो जाए। जीनोमिक्स क्या होता है? इसके तहत ना सिर्फ जनीनी बेइतदालियों का पता लगाया जाता है, बल्कि महीनी सफ़वी तरबियत माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी के ज़रिए जीन की गैर तबई तंजीम की इस्लाह की जाती है, निज़ उनका इखराज किया जाता है। मिजाज की इस्लाह में यही राज मुज़मिर है, जो इत्तलाती तरजियात ने आसान कर दिया है। शख्सी मिजाज और उसकी बुनियाद पर इलाज, जिसका तसव्वुर तिब्ब यूनानी बहुत पहले दे दिया, तब उसी पर तिब्ब जदीद सरकर्दा नज़र आ रहा है। इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अक्र वो जिनसी अमराज में जो यूनानी की अपनी एक पहचान है। ओवुलेटर, जिसकी मदद से ये पता चल जाएगा कि अमल बैज़ा आवरी ओवुलेशन कब होने वाला है। अगर बर मौका मुआजिन और मुक़व्वियात बाहदवियत दी जाएँ तो ये हुसूल औलाद में मुआविन होगा। जो लोग इस शोबे में काम कर रहे हैं उनके लिए ये आला पयाम बैज़ा आवरी ओवुलेटर एक कोहिनूर हीरे के मानंद है। सेहत की बरकी दर्जाबंदी HR, तिब्बी की सेहत की तिब्बी दर्जाबंदी MHR, ज़ाती सेहत की दर्जाबंदी PHR के ज़रिए तिब्ब यूनानी के मुख्तलिफ इदारियाती और इनफरादी आदाद व शुमार को इस तरह महफूज किया जा सकता है कि उसमें यकसानियत रहे। मसलन मर्जियाती मॉर्बिडिटी मख्फी इशारे ICD-10 वगैरह के ज़रिए हुकूमत हिंद का यही मकसूद है। इसी तरह तिब्ब यूनानी के मुख्तलिफ अस्पतालों में कौमी बोर्ड बराए मंजूरी अस्पताल NABH का इतलाक़ भी इसी तरजियात के ज़रिए मुमकिन व आसान है, जो कि एक अहम काम है। तिब्ब यूनानी के मखतूतात ने किताबों को बरकी शक्ल में लाने, डिजिटलाइज करने का काम भी इसी तरजियात से मुमकिन है। इसी तरह तिब्बी इस्तिलाहात की मुनज़्ज़म नामज़दगी स्नोमेड सिटी के तर्ज पर हम तिब्ब यूनानी का बुनियादी मवाद डेटाबेस बना सकते हैं। स्नोमेड सिटी में 4,48,261 इस्तिलाहात बहाल ही मौजूद हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तायराना निगाह। ये HMIS आयुष के तमाम यूनिट्स में अब जारी कर दिया गया है। मकसद ये है कि तमाम डेटा को हम सेव कर सकें ऑनलाइन, और अगर हमें किसी मरीज़ की ताल्लुक से पूरी जानकारी हासिल करनी है, 10 साल पहले भी चाहे वो आया हो, उसकी मालूमात हमें इससे मिल जाती है। इसकी यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह ये दिया है, उसके मकासद क्या हैं, उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। ये इट इज़ ईजी टू यूज़, it is highly secured, it integrates all the IUS system, compliance with EHR standard 2016, Ministry of Health and Family Welfare and other standards HL7 वगैरह। it has a inbuilt standard dual coding system, National Ayush Morbidity Code ICD-10। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये इफेक्टिव क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन इससे हो सकता है, इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल डेटा रिट्राइवल हो सकता है, adaptive new features of dual coding ICD-10 and National Ayush Morbidity Code. It supports full range of data capture and data management functions. State of art report generation, boon for getting the NABH and NABL accreditation, comprehensive collection of National Ayush Morbidity Codes. आप जैसे ही इसको होम पेज खोलेंगे इस तरीके से आपको ये पेज नज़र आएगा। उसके बाद आपको स्टाफ लॉगिन पेज पर जाना है, और अब तो ये जो यहाँ RM श्रीनगर का जो हमने ये बताया है, तो वहाँ का यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे तो इस तरीके से पेज खुल के आएगा। अब तो खैर न्यू वर्जन आ गया है स्टेज ही करके, और उसके अंदर लोग एंट्री कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। और ये इस तरीके से मुख्तलिफ़ डिटेल हैं जो स्टाफ की यहाँ पर फिल की जाती हैं। हम यहाँ पे जो कंसल्टेंट पेज है उस पर चलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन है जहाँ से कोड और बारकोड निकालने का भी सिस्टम है। ये कंसल्टेंट पेज है, आप देख सकते हैं कंप्लेंट्स, ड्यूरेशन, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, LMP एंड प्रोग्नोसिस, लैब, प्रिस्क्रिप्शन, डूज एंड डोंट्स, IP एडमिन। और यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको जो लिस्ट नज़र आ रही है, पेशेंट की लिस्ट है, उस पर क्लिक करना होता है। ये आप देख रहे होंगे, तो क्लिक करेंगे ग्रीन कलर से वो आ जाता है। फिर वहाँ पे पेशेंट की जो है वो डिटेल जो भी है, पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, सारी बातें। ये प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे जैसे आप हब डालेंगे, यहाँ पे आप हब एंटर करेंगे, हब में मुसफ़ी खून वगैरह उसकी अगर डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद आपको ये डिटेल्स भरने के बाद उसको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले वो पूछता है आर यू श्योर, आप ओके कर दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो है फार्मेसी में चली जाएगी। यानी पहले रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन OPD में गई, अब OPD की इन्फॉर्मेशन फार्मेसी में चली गई। वहाँ पर बिलिंग वगैरह का प्रोसेस होता है, और ये एक प्रिंट निकाल करके पेशेंट के हवाले किया। तो ये जो बारकोड नज़र आ रहा है उसके अंदर पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। ये इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक सिस्टम है, एक बारकोड प्रिंटर है, एक टोकन प्रिंटर है। देखिए पेशेंट पहले आया, वो रजिस्ट्रेशन पे गया। रजिस्ट्रेशन पे 3 काम होते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है, या ओल्ड पेशेंट हो तो रिन्यूअल होगा,
या फिर जो वहाँ से जो उसको डेली बारकोड और टोकन वगैरह दिया जाएगा। और टोकन के बाद जो पेशेंट जाता है एग्जामिनेशन हिस्ट्री टेकिंग वाइटल साइंस बाय जीआरएफ एंड एसआरएफ पीजी स्कॉलर्स, ये दूसरी स्टेप होती है। तीसरे वो वेटिंग रूम में बैठेगा कंसल्टेंसी एज पर डिस्प्ले, एक डिस्प्ले लगा होगा वेटिंग रूम में, जहाँ पे जैसे बैंक में होता है टोकन नंबर ये काउंटर नंबर ये, उसी तरह यहाँ पे टोकन नंबर ये ओपीडी नंबर ये जो है उस हिसाब से पेशेंट जाएगा। कंसल्टेशन जो है एज पर डिस्प्ले होगा और इसी तरीके से जो है वो फिर उसके बाद डिस्पेंसरी में पेशेंट जाएगा और वहाँ पर उसको दवाएं दी जाएंगी। HL7 इसी तरीके का प्रोग्राम HL7 है, तो भी देखने की ज़रूरत है। डायग्नोस्टिक टूल के अंदर जो है वो इसका बहुत अहम रोल है। तशखीसी उमूर में इत्तलाती तर्जियात का किरदार, तिब्बी तस्वीरी अमल साजी मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसिंग मसलन MRI USG एक्सरे वगैरह से तशखीसी उमूर में काफ़ी मदद मिलती है, जिनका इस्तेमाल आजकल तमाम शिफाखानों बशमूल यूनानी शिफाखानों में हो रहा है। खुसूसन जब मरीज़ अपने साथ इस किस्म की तस्वीर दस्तावेज़ लाते हैं तो उन्हें देखना और उनकी बुनियाद पर तशखीस करना नागुज़ीर हो जाता है। अददी तस्वीर सादी और तिब्बी रतबात डाइकॉम, जिसका इस्तेमाल तिब्बी दस्तावेज़ के उसूल ज़ख़ीरा अंदोज़ी हिफाजत बाजियाबी के लिए किया जाता है। IIT के माहिरीन को इंतबाह, अब कुछ बातें जो है बड़ी अहम है। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग ज़रूरी है। 1994 में बरक़ी एफराज सॉफ्टवेयर में खलल बग आने की वजह से USG मशीन में ख़राबी हुई, गलत शुआओं का इर्तिकाज़ हुआ और मरीज़ जाँ बहक हो गया। उसी तरह एक तैयारा महज इसलिए हादसे से दो चार हो गया क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर की जांच और इस्लाह डीबगिंग नहीं की गई थी और 264 लोग जाँ बहक हो गए। इसलिए IIT के माहिरीन को तंबीह की जाती है कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग ज़रूर कर लें। दीगर शोबों में उमूमन अतिब के शोबे में खुसूसन खलल सॉफ्टवेयर की तशख़ीस ने उसकी असलाह ज़रूरी है, वरना इस तरीके की लापरवाही से खुसूसन तिब से मुताल्लिक़ शोबों मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में लापरवाही से मरीज़ों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमने एक जो है वो गौर की करके जो है ये अद्विया से मुताल्लिक़ कुछ नुकात जमा किए थे और वो मौक़ा शबकिया की बुनियाद पर बने हुए मुफरदात का निज़ामिया, उसकी तख़रीज व तस्वीब। नंबर 2 तदरीस में मुआवनत के तरीक़ाकार। नंबर 3 सैदना के उसूल व ज़वाबित। नंबर 4 मुफरदात की मयारी दर्जा बंदी की तारीफ़ नेज़ तस्वीब के तरीक़े। नंबर 5 मुद्दत मनसूबा 2 साल। नंबर 6 बुरून जामिया तहक़ीक़ EMR मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड की नक्शबंदी। दस्तावेज़ अज़ीम बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा एक किस्म का वसी ज़ख़ीरा मालूमात है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी हडूप जिसका नाम है से मरीज़ों के बिलियन और ट्रिलियन गैर साख्ता डेटा एक्सरे प्लस सिग्नल्स मुआलजाती वीडियोज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और प्रोसेसिंग में ये चीज़ मददगार है। ये हस्ब ज़ैल चीज़ों में मददगार है, जैसे आबाद की सेहत की बाज़ आबादकारी, इल्म जनीनियात का हुसूल, इल्म सरतान का हुसूल वगैरह। पॉसिबिलिटीज़ यूनिसॉफ्ट के ताल्लुक़ से भी हमने गौर व फिक्र किया था। हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल हसीब अंसारी थे और जाकिर सर हैदराबाद के और वसीम सर NIUM के और निखात मैडम जो थी बम्बई की और मैं भी था उसमें। मज़कूरा तरबियत से फ़ायदा हुआ कि हमारी टीम ने इस जानिब सोचना शुरू कर दिया है। हमारी टीम ने ई अद्विया मिजाज सॉफ्ट यूनिसॉफ्ट जैसे बरक़ी अफराज़ात सॉफ्टवेयर की जानिब पेशरफ्त किया जो कि अभी इब्तदाई मरहला में है। महकमा आयुष के सामने मज़कूरा बरक़ी अफराज़ का खाका पेश कर दिया गया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि तिब्बी यूनानी से मुताल्लिक़ लोग बासानी मुफरद व मुरक्कब अद्विया नेज़ मबहस मिजाज और तिब्बी यूनानी से मुताल्लिक़ दीगर इस्तिलाही बातों से बितफ़सील मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। यहाँ मिजाज सॉफ्ट के मसले का मुख्तसर खाका पेश किया जाता है। मिजाज सॉफ्ट के नुकात। तिब्बी यूनानी में मिजाज का तसव्वुर क्या है? नंबर 2 मंसूबे की अहमियत व ज़रूरत। नंबर 3 उसका सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर 4 बेनिफिट्स। नंबर 5 उसमें फ़ायदा कौन कौन है, बेनिफिशरी कौन कौन होगा। नंबर 6 तरीक़ाकार व तराकीब। नंबर 7 मंसूबे की मुद्दत क्या होगी। नंबर 8 बकरी अफ़ज़ा ये की साख्त व अरकान। नंबर 9 सवालनामे बराए मरीज़। नंबर 10 मीज़ानिया यानी कि बजट। GIS हैज़ा कॉलरा ये एक बरकी नक्शा है जो किसी वबा के जोग्राफियाई फैलाव को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल ऐप्स बहुत सारे ज़िक्रुल मज़हर मवासलाती मंसूबे एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के ज़रिए से AP के मोबाइल ऐप बनाए जाते हैं और उसकी मदद से तिब्बी यूनानी से मुतालिक ऐप बनाए जा सकते हैं। इलाहाबादी पैगाम रसानी और हिसाब व किताब के ज़रिए के लिए उर्दू में ऐप बनाए जा सकते हैं। खुराक ग़िज़ा और खुराक दवा से मुतालिक याद दहानी। मरीज़ का तबीब की हिदायत के मुताबिक दवा और ग़िज़ा का इस्तेमाल न करना एक मसला है जिसके हल के लिए अतिब्बाए हादिकीन एक अरसे से हैरान और सरकर्दा हैं। इत्तलाती तर्जियात की मदद से इस मसले को हल किया जा सकता है।
तिब्ब यूनानी में ग़िज़ा और दवा की मकदार खुराक और वक्त खुराक की काफ़ी अहमियत है। ग़िज़ाई तदाबीर की अहमियत और हिफाजत को आवाम तक पहुँचाने में मोबाइल ऐप्स अहम रोल अदा कर सकते हैं। मसलन तपेदिक, फ़क्रुद्दम, औरतों में अय्याम हमल व मुरदिआ, ग़िज़ाई क़िल्लत व नक़ाहत में ग़िज़ाई तदाबीर की अहमियत है, यानी कौन सी ग़िज़ा कब देनी है और कितनी लेनी है। अगर इन ऐप्स के ज़रिए आवाम को ग़िज़ा और दवा के मामूलात और तरीक़ से याद दहानी करा दी जाए तो दवाओं और ग़िज़ाओं की सही तौर पर नफूज़ पज़ीरी में मदद मिलेगी। IVRS एक निज़ाम है जिसके तहत मरीज़ को उसकी खुराक और मामूलात इलाज से मुतालिक याद दहानी कराई जाती है। M.Dots प्लस एक जवाल निज़ामिया मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से दिक के मरीज़ों की ग़िज़ाई व दवाई निगहदाश्त की जाती है। आई मॉस्कीट एक जवाल निज़ामिया एक ऐप है जिसके ज़रिए से मलेरिया के मरीज़ों की निगहदाश्त होती है। नेक मुल्क के तूल अर्ज़ से इस सिलसिले में हासिल होने वाले दस्तावेज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नेज़ बिनाबरी मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी मुमकिन होती है। तिब्ब यूनानी में इस तर्ज़ का इतलाक़ वक्त की ज़रूरत है, खुसूसन वो लोग जो शोबे तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब से वाबस्ता हैं। कौमी ख़ात्मा बराए तप दिक़ सिल TBENE प्रोग्राम के ज़रिए से सिल व दिक़ के मरीज़ों की निगहदाश्त होती है। जोग्राफ़ियाई मालूमाती निज़ाम GIS जोग्राफ़िकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए फैली हुई वबा के असबाब का पता लगाया जा सकता है। नेज़ वो वबा कहाँ तक फैली है, कितने इलाकों को अपनी लपेट मिली है, वो पता किया जा सकता है। कंक्लूजन ये है कि अगर देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि इस मामले में तिब्ब यूनानी दीगर मासिर तिब्बों के मुकाबले में काफ़ी पीछे है। दीगर तिब्बों ने अपने बरक़ी अफ़ज़ार, सॉफ्टवेयर और निज़ामियात ऐप्स बना लिए हैं, बेशुमार बरक़ी किताबें तैयार कर ली है। मसलन आयुर्वेद ने आयुसॉफ्ट 2004 ईस्वी से ही जारी व सारी है, जो आयुर्वेदा के बड़े इल्मी सरमाए को मुहीत है। नेज़ उन्होंने ई सुशरत और ई चर्क नामी बरक़ी किताबें तैयार कर ली हैं। सिद्धा ने सेहत का बरक़ी अंदराज तैयार कर लिया है। अहलियान तिब्ब यूनानी इस मामले में ख्वाब गफलत का शिकार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इल्मी सरमाया कोई और हथियार ले और हम हाथ मलते रह जाएं। ज़रूरत इस बात की है कि अतिब्बाए वक्त इस मौजू को संजीदगी से लें, जैसा कि दीगर देसी तिब्बों के मुतअल्लिकीन ने लिया है और वो तरक्की की राह पर गामज़न है। ये यूनिसॉफ के ताल्लुक से हमने डिस्कस किया। मिजाज सॉफ का जो लुक रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, मबहस मिजाज, और ये सारे पॉइंट्स होंगे। ई अदविया कुछ इस तरीके से नज़र आएगी और इसमें ये पॉइंट्स हमने शामिल किए हैं। सजेशंस हमारा यही है कि देयर शुड बी ट्रेनिंग सेशन बाय एक्सपर्ट्स हैविंग बोथ नॉलेज ऑफ यूनानी एज वेल एज हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स पीरियडिकली इन ईच यूनानी इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग an IMR project of ALA and ebooks are under approval and process should be pursued as early as possible for smooth development of Unani medicine in the field of IT. A team should be appointed free from all other charges for the period required up to the implementation of these projects. इंडेक्स ऑफ IT टर्मिनोलॉजीज़ जो है हमने बनाई है, जो तर्जुमान तिब्ब ने शाये की है, वहाँ देखी जा सकती है। और जो इसका कंक्लूजन है, जो हमने भी ये डिस्कस किया है कि इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, ये उसके रेफरेंसेस हैं। उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। जिसको क्वेश्चन करना हो हमारे ईमेल एड्रेस और हमारे कॉल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।